أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 تا 32 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، تیرا کلام پاک پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، اولاد، ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، شہدائے 1947 اور شہدائے فلسطین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، میرے والدین اور میری بیوی سمیت آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے اور قیامت تک مجھ سمیت جتنے مسلمان فوت ہوں گے ان سب کی بھی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو صحت کی بادشاہی عطا فرما، ہماری روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ، خاص طور پر ہمارے بھائی ڈاکٹر اکرام صاحب، ندیم نیاز صاحب، عبدالحی صاحب، شیخ محمد ایوب صاحب، لالا رشید دیوان صاحب، ساجد اشرف صاحب، حاجی محمد حنیف صاحب، اور ہماری بہنیں مسز شاہد شہاب، مسز حاجی حنیف، مسز حفیظ مہمی، مسز جرار سیفی، مسز رانا خالد اور مسز احسان قادری کے علاوہ یا اللہ ہمارے بچے بڑے سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، جو بچے بچیاں بن بیائے بیٹھے ان کے جلد رشتے طے فرما، جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھ اور ہر طرح کی ناچاکی، نا اتفاقی سے بچا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص رحم فرما۔ یا اللہ ان کو ہر طرح کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا پاک پروردگار، مجھے اور راؤ شاہنواز کو جو توفیق بخشی ہے اسے مرتے دم تک نبھانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान से शानवाज तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान गिरामी, आपके सामने सूरह अराफ की आयत नंबर 31 और 32 की तिलावत की गई। अब इन आयात करीमा के तफसीर इब्न कसीर से और तशरी और तर्जुमा मुफ्ती तकी उस्मानी का लिखा हुआ हाज़िर खिदमत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, ए आदम के बेटों और बेटियों, जब कभी मस्जिद में आओ तो अपनी खुशनुमाई का सामान यानी लिबास जिस्म पर लेकर आओ और खाओ पियो और फजूल खर्ची मत करो। याद रखो कि अल्लाह फजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। कहो कि आखिर कौन है जिसने ज़ीनत के इस सामान को हराम करार दिया जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा किया, और उसी तरह पाकीज़ा रिज़्क़ की चीज़ों को। कहो कि जो ईमान रखते हैं उनको ये नेमतें जो दुनियावी ज़िंदगी में मिली हैं क़यामत के दिन खालिसतन इन्हीं के लिए होंगी। इसी तरह तमाम आयतें उन लोगों के लिए तफसील से बयान करते हैं जो इल्म से काम लेते हैं। अब इन आयत करीमा की तफसीर इब्न कसीर से उन्वान होता है, अच्छा लिबास कौन सा है। इन आयात में एक मुशरिकीन का रद्द है जो बरहना होकर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया करते थे और इसी का पर एतक़ाद करते थे। दिन में मर्द और रात को औरतें कपड़े उतार कर तवाफ़ किया करती थी। चुनांचे इरशाद होता है कि हर नमाज के वक्त जिसमें बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ की इबादत भी शामिल हो सकती है, अपनी ज़ीनत यानी लिबास पहने रहो जो तुम्हारे जिस्म की बरहनगी को छुपा ले, और इसके अलावा अच्छे अच्छे कपड़े और ज़ीनत भी कर लो। सुल्फ और आइमा कराम ने लिखा है कि यह आयत मुशरिकीन के बरहना होकर तवाफ़ करने के मुतालिक है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि ये नमाज के वक़्त जूती पहनकर नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन इसकी सेहत गौर तलब है, और इसी बिना पर हदीस में कहा गया है कि नमाज के वक़्त तहम्मुल से नमाज पढ़ना मुस्तहब है और लायक सवाब है, ख़ुसूसन यौम जुमा और यौम ईद। और बेहतर है कि तुम खुशबू भी लगा लो, क्योंकि ये भी ज़ीनत है, और सबसे अच्छा लिबास सफ़ेद लिबास है। फरमाया सफ़ेद लिबास पहनो, और यह सबसे अच्छा लिबास है। और अपने अमवात यानी अमवात को सफ़ेद लिबास में ही कफनाओ। आँखों में सुरमा लगाना ये बसारत को तेज़ करता है और बालों को उगाता है। हदीस शरीफ में है, तमीम दारी ने एक चादर 1000 दिरहम में ख़रीदी, इसी को ओढ़कर नमाज़ पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, खाओ पियो और इसराफ न करो। इस आयत में सारी तिब मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जो चाहो खाओ पहनो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं रखता। 2 खसलतें बुरी हैं, एक तो इसराफ और दूसरे गरूर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ पियो पहनो और दूसरों को भी दो, लेकिन इसराफ ना होने पाए, इसमें चूँकि गरूर शामिल है। फिर फरमान होता है कि उस बर्तन से ज़्यादा मनहूस कौन सा हो सकता है जिसको भरा हुआ पेट कहा जाए। इंसान के लिए तो चंद लुक़मे ही काफ़ी हैं जो इसको अपनी हालत में कायम रख सकें। अगर कुछ खाना चाहो तो 1/3 पेट ग़िज़ा से भर लो, 1/3 पानी के लिए, 1/3 आसान सांस लेने के लिए छोड़ दो। अल्लाह अकबर। बाकी सब असराफ है। अब उन्वान होता है खाने पीने की चीज़ को अपने ऊपर हराम करार देना, हलाल चीज़ों को हराम करार देना। इस आयत में रद्द है कि उस शख्स को जो खाने पीने या पहनने की कोई चीज़ अपने ऊपर हराम कर लेता है, हालांकि शरन कोई मुमानियत नहीं। कह दो कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुशरिकीन से कि जिन्होंने अपने आप ही ये आरा फासिदा अपने ऊपर कायम कर ली है कि हलाल चीज़ों को हराम कर लिया है। किसने अल्लाह ताला की इस दी हुई ज़ीनत को हराम कर दिया जो हक़ ताला ने अपने बंदों के लिए करार दी है, जिसको कि अल्लाह ताला ने पैदा किया इस दुनियावी ज़िंदगी में अपने इबादत गुजार मोमिनों के लिए। अगरचे कुफ़ार भी इसमें शरीक हैं, लेकिन इन नेमतों का हक़दार तो असल में मोमिन ही है, तो क़यामत में मोमिनों को मिलेंगी और कुफ़ार को नहीं मिलेंगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।